Good morning to all. Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay, so in this lecture, just we are going to discuss about the JEE main and advanced level exams and the chapter. Actually, this area of any bounded car. Okay, and by using actually it is the application of integration chapter. Okay, so I think in the last lectures we had discussed various questions and various solutions and various concepts as well, and just in this lecture just we are going to cover, just as I told you in the last lecture, that we are covering the previous 10 to 20 years questions from JEE main and advanced level exams. Okay, so I have collected these questions and just we are solving these questions in various lectures. Just you should do the practice well, and just if you have any doubt, if you have any query regarding the solutions, regarding the concepts, just you can ask me in the comment section as well. Okay, so in this lecture the same thing will be happened. Just we are going to cover the different questions and different solutions from this area of any bounded car chapter, application of integration. Okay, so if you like my videos, if you like my lectures, then सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करिए दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना हो सके इतना शेयर करिए, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ एनी बाउंडेड कार तो कर रहे हैं, है कि नहीं, तो ये इट्स अबाउट टू कंप्लीट। ओके, सो देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट द indefinite integral. We will start the indefinite integral chapter. Okay, so actually in the various lectures, JEE main and advanced level exams, just I think we had covered almost 80 to 90 questions from the different chapters. Okay, but your responses is coming very slow. Okay, you are not doing the practice properly, you are not solving the questions from the different sources. Just if you actually solve the questions properly, then some questions might be arised, but no one is asking me any questions regarding the solutions, regarding the questions, various questions. Just all the questions were not done, just many more questions are left yet. Okay, so just you have to do the practice properly, just you have to do that questions which are left in the lectures. Okay, just you have to practice it. No, so if you practice it, then many more confusions and many more questions will be arised in your mind. Just okay, so then if you want to actually sort out this confusion, if you want to solve the different types of solutions from the different books, then you should have the actually the enough knowledge regarding the chapter, regarding the concept as well. If you don't have the knowledge, if you don't have the concepts regarding that particular question or that particular topic, then you can ask me in the comment section, that I will give my best to make you successful, to make you confident in the particular exam, in the particular question, in the particular topic as well. Okay, so in this lecture just we are going to cover some questions. Just write the first question here. Okay, just write the first question. The area of the bounded region, the area of the bounded region by the curves, the area of the bounded region by the curves, area of bounded region by the curves, कर्व्स क्या क्या है, बाय द कर्व्स y equals to root x, this is the first curve, and a line is given, 2y minus x plus 3 equals to 0. Okay, and x-axis, okay, so these three curves and the lines are given. Okay, just you have to find the area of the bounded portion which is bounded by these three given equations. Okay, so at first all the equations should be rearranged in the formation actually. Okay, just if you have now y equals to root x, both सारे अगर स्क्वायर करेंगे y square equals to x, that means y square equals to 4 into 1 by 4 into x, that means vertex तो होगा यहाँ पर क्या 0,0, ठीक है, और फोकस पॉइंट होगा यहाँ पर
1/4, ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया. Twice y minus x plus 3 equals to 0. That means minus x plus twice y equals to minus 3. That means x minus x by minus 3 plus twice y by minus 3 equals to 1. That means पूरा इक्वेशन को मैंने minus 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि इंटरसेप्टिंग फॉर्म में सजाना है आपको. तो that means x by 3 plus y by 3 by 2 equals to 1. So that means 2 पॉइंट निकलता है 3,0 एंड 0, minus 3/2. 3,0 एंड 0, minus 3/2. ये देखो 2 पॉइंट मिल गया. अब जो है ये तो इक्वेशन नंबर 2 है आपको. नाउ अभी ये जो 2 इक्वेशन दिया गया है ना, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये दोनों में इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या क्या है. तो यहाँ पर है y² इक्वल्स टू x और इधर है twice y minus x plus 3 equals to 0. x का वैल्यू क्या है? y² है कि नहीं? That means twice y minus y² plus 3 equals to 0. That is minus y² plus twice y plus 3 equals to 0. माइनस कॉमन लेंगे y² minus twice y minus 3 equals to 0. है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मिडल टर्म फैक्टराइजेशन यूज करूं, y² minus 3y plus y minus 3 equals to 0. That is y minus 3 and y plus 1 equals to 0. That is 2 पॉइंट निकलता है y minus 3 and y plus 3 and y equals to minus 1. है कि नहीं? ठीक है. तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर प्लस 3 होता है, यहाँ पर y का वैल्यू अगर प्लस 3 है, देखो प्लस 3 है, y का वैल्यू अगर प्लस 3 है, y का वैल्यू क्या आ रहा है? देखो y का वैल्यू प्लस 3 है कि नहीं? प्लस 3 दैट मींस 3 स्क्वायर 9. x का वैल्यू यहाँ पर 9 आ रहा है. y का वैल्यू अगर यहाँ पर -1 आ रहा है, -1, देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है? -1, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा. x का वैल्यू 1 आएगा. है कि नहीं? ठीक है. तो दैट मींस 2 पॉइंट निकलता है 3,98 एंड 1,-1. ठीक है. हो गया. अब जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया. अब आपको फिगर यहाँ पर पूरा ड्रॉ करना है. तो ये जो फिगर है देखो, ये तो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नहीं? तो वर्टेक्स भी 0 0 है. दैट मींस इस टाइप का कुछ होगा फिगर. नीचे भी होगा. नीचे तो जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, नीचे तो जरूरत नहीं होता है. फिर लाइन क्या है? ये लाइन. दैट मींस ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट के का मिला 3,0. ये है सपोज 3,0 है और 0,3/2 ऐसा कुछ है यहाँ पर 0,-3/2. दैट मींस ये दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं, ये देखो ये ऐसे निकलता है ना. तो यहाँ पर तो एक्स एक्सिस से भी तो बाउंडेड है, तो शेडेड पोर्शन कौन सा आ रहा है? ये पोर्शन आ रहा है. और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 9,3 है. 9,3. तो ये 9,3. दैट मींस यहां से अगर मैं एक्स एक्सिस को ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये 9,0 आएगा. है कि नहीं? ठीक है. अब जो है एरिया किसका निकालना है? OAB का एरिया मुझे निकालना है. तो सो द एरिया ऑफ OAB इक्वल्स टू, जस्ट राइट दैट पार्ट. एरिया ऑफ OAB इक्वल्स टू एरिया ऑफ OAB इक्वल्स टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं. एक काम करते हैं, पहले इसका पूरा निकाल लेते हैं. ये है इसका, ये जो पोर्शन है, ये जो स्पेस है किससे बाउंडेड है? कर्व से बाउंडेड है. ये कर्व का इक्वेशन क्या है? √x dx और लिमिट क्या है? 0 to 9. इससे माइनस करना है. देखो 0 to इससे माइनस क्या करना है? 0 तो नहीं होगा यहाँ पर. ये जो पॉइंट है ये ट्राइंगल पार्ट माइनस करना है. दैट मींस ये गैप पोर्शन माइनस करना है. तो एक गैप पोर्शन का लिमिट कहां से कहां तक है? 3 to 9 है. 3 to 9. और ये जो पार्ट है ये किससे बाउंडेड है? लाइन से बाउंडेड है. लाइन की इक्वेशन क्या है? ये. दैट मींस x -3/2 dx. बस अब कर लो. ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है. x⁻³ by 3/2 0 to 9 और इधर हाफ x² by 2 -3x 3 to
9। बस सब कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन मुझे नहीं करना है, ये आप लोगों को करना है कैलकुलेशन, ठीक है? ओके, हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। ये मेन का क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेन का क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय द कर्व्स। लाइन तो एक ही है, कर्व्स का यहाँ पर डिफरेंस होता है। y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स, y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स, y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, ओके, एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4। ये तीनों कार्व यहाँ पर दिया गया। ये कार्व नहीं, ये लाइन है, बट ये दोनों कार्व है, ठीक है? अच्छा तो यहां पर एक काम करते हैं, तीनों को ऐसे पार्ट कर देते हैं। तो यहां पर रूट एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 1, दैट इज बोथ साइड अगर स्क्वायर करें, एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स माइनस 0। तो ये शायद तो वर्टेक्स 0,1 दिखाई दे रहा है। वर्टेक्स 0,1, वर्टेक्स क्या है? 0,1। फोकस पॉइंट क्या है? ये तो सिमेट्रिकल अबाउट क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट मीन्स a प्लस अल्फा 0 प्लस बीटा। तो a क्या है यहाँ पर? 1/4, 1/4 प्लस अल्फा, दैट मीन्स क्या है? 0 प्लस बीटा, दैट मीन्स 1/4, 1 होता है फोकस पॉइंट। ये गया फर्स्ट कार्व का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। अब ये देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो ये तो लाइन है। x/3 इंटरसेप्टिंग फॉर्म में सजाना है। दैट मीन्स 2 पॉइंट मिला, 3,0 एंड 0,3, 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गया। ये पॉइंट क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू वाई, है कि नहीं? ठीक है। सो ये तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वर्टेक्स जो है 0,0 है, और फोकस पॉइंट ये देखो, ये सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। दैट मीन्स 0,a, तो a दैट मीन्स 0,a क्या है यहाँ पर? 1, 0,1। देखो ये तीनों कर्व हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है कि नहीं? अच्छा, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालेंगे। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 दे दो, ठीक है? सबसे पहले एक काम करो, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पर देखो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स 12 माइनस 4x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म फैक्टराइजेशन हो सकता है। x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x प्लस 6 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू माइनस 6, x का वैल्यू 2, 2 निकलता है। तो x का वैल्यू अगर माइनस 6 हो, x का वैल्यू अगर माइनस 6 हो, y का वैल्यू क्या होता है? माइनस 6 हो स्क्वायर 36, y का वैल्यू 9, और अगर 2 होता है, देखो 2 स्क्वायर 4, y इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स 2 पॉइंट निकलता है, माइनस 6,9 एंड 2,1, है कि नहीं? 2 पॉइंट मिलता है। ये तो लाइन के साथ इस कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब लाइन के साथ ये इस कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं? ये जो कर्व है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 करके देखो तो क्या आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 सॉल्व करो, यहां पर कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 3, नॉट 3, 1 एंड 2।
तो 1 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रूट एक्स इधर रखते हैं और इधर 1 को उधर लेके चले जाते हैं, 2 माइनस एक्स, बहुत सारे अगर स्क्वायर करें एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो मिलता है क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1, दो मिलता है कि नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा फिगर में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर x का वैल्यू 4 होने से y का वैल्यू क्या होता है, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पर जगह ही नहीं है, कहां पर निकालें इसको। देखो यहाँ पर x का वैल्यू 4 होने से y का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू 4 होने से y का वैल्यू माइनस 1, x का वैल्यू 1 होने से y का वैल्यू 2। दैट मीन्स क्या क्या पॉइंट निकला, 4 कोमा माइनस 1 और दूसरा होता है 1 कोमा 2, ठीक है। तो सब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहां पर निकल गया, जितना भी निकालना था हम लोगों ने निकाल लिया है। अब फिगर थोड़ा ड्रॉ करना है, ठीक है। फिगर थोड़ा ड्रॉ करो, देखो ऊपर ड्रॉ करें, एक काम करते हैं इधर ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। देखो फर्स्ट कर्व वर्टेक्स 0,1 है और फोकस पॉइंट ये है। इट मीन्स 0,1 तो आसपास यहाँ पर, 0,1 आसपास यहाँ पर होगा, 0,1 है कि नहीं। तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है। है कि नहीं। फिर उसके बाद लाइन 0,3 और 0,3 एंड 3,0, 3,0 यहाँ पर होगा, सपोज 3,0 और 0,3 यहाँ पर होगा, है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड क्या है, थर्ड तो भी पैराबोला है। अब पैराबोला वर्टेक्स तो 0 जो है, फोकस पॉइंट 0,1 है, 0,1। दैट मीन्स 0,1 ये है। तो ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर बाउंडेड पोर्शन जो है, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहां पर क्या क्या, ये कार्बो लाइन के बीच ये पॉइंट कितना है, मतलब यहां पर ये डिफेंस ये वाला। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के बीच क्या क्या पॉइंट है, ये 4,-1 1,2। तो ये ऑब्वियसली 1,2 ही होगा, ये 1,2 ही होगा, 4,-1 तो नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि नीचे है। 4,-1 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है। फिर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट दैट मींस ये कार्ब नंबर 3 और कार्ब ये लाइन 2, ये 2,1 होगा, क्योंकि -6,9 तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 2,1 दैट मींस यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये हो जाएगा 2,0। यहां से एक परपेंडिकुलर अगर एक मैं ड्रॉ करूं, ये हो जाएगा 1,0 और ये तो 0,0 है। तो शेडेड पोर्शन कौन सा आ रहा है, बाउंडेड पार्ट, देखो ये आ रहा है ना, देखो, है कि नहीं। तो यहां पर बस अब तो ये सबका जरूरत नहीं है, सब मिटा दो उसको, ठीक है। और ये देखो, ये दोनों कार्ब में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका तो जरूरत ही नहीं होता है, क्योंकि वो शेडेड पोर्शन से तो बाहर है, तो क्यों निकाले उसको, जरूरत नहीं है कि नहीं। नाउ एरिया, एरिया एरिया जो है, देखो नाम दे देते हैं, A B
ओ, ए बी ओ सी। सो देखो एरिया ऑफ ए बी ओ सी ए, इसका मुझे निकालना है कि नहीं। अब ये टोटल एरिया देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो 0 से लेके 1 तक, दैट मींस ये पार्ट 0 से लेके 1। अब 0 से लेके 1 तक देखो, पहले हम लोग अगर मैं ये निकालूं पूरा, ये इसका निकालूं पूरा, तो यहां पर कौन सा कर्व से बाउंडेड है, इस कर्व से बाउंडेड है। दैट मींस ये कौन सा कर्व है, फर्स्ट कर्व है। दैट मींस y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स dx। इससे माइनस कौन सा करना है, दैट मींस ये छोटा वाला गैप देखो दिखाई दे रहा है, ये छोटा गैप, ये गैप है कि नहीं, ये गैप किससे बाउंडेड है, कर्व नंबर 3 से। दैट मींस 0 to 1 x स्क्वायर बाई 4 dx हो गया। इस पोर्शन का तो निकल गया प्लस 2। अब इस पोर्शन का आएंगे, इस पोर्शन में पहले हम लोग इसका निकालेंगे, ये पूरा इसका निकालेंगे। तो ये पूरा पार्ट किससे बाउंडेड है, लाइन से बाउंडेड है। दैट मींस लिमिट क्या होगा, 1 to 2 है कि नहीं, 1 to 2 ये पोर्शन। तो लाइन दैट मींस 3 माइनस एक्स dx, उससे माइनस कौन सा करना है, 1 to 2 ये गैप पोर्शन। ये गैप पोर्शन किससे बाउंडेड है, कर्व से बाउंडेड है। दैट मींस एक्स स्क्वायर बाई 4। बस हम निकाल लो उसका, क्या होता है, x प्लस एक्स टू द पावर 3/2 बाई 3/2। लिमिट है 0 to 1 माइनस 1/4 एक्स क्यूब बाई 3, ये है 0 to 1। इधर 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये है 1 to 2 माइनस 1/4 एक्स क्यूब बाई 3, 1 to 2। ठीक है, तो सब लिमिट बिठाओ, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वही एरिया होगा ये शेडेड पोर्शन का, है कि नहीं, आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, हो जाएगा ना ये, है कि नहीं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट find the area bounded by the curves, find the area bounded by the curves y square less equals to twice x। और दूसरा है y greater equals to 4x minus 1। तो एक काम करते हैं, पहले तो लेट लेके इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट फॉर्मिंग द इक्वेशन पार्ट we can't solve the shaded portions area, no? Less than greater than sign will be used for finding the feasible region, okay? But if you want to solve, if you want to find this actually this intersecting point, if you want to find the area of any particular region, then the equation should have been formed, and that's why just we form the equations first, okay? And less than greater than sign will be used for finding the feasible region, that means for finding the shaded portion. Which part will be shaded, that means which area is going to be found, that part should be shaded by using this less than and greater than sign, okay? So now 4x minus 1, so here y square equals to twice x, that means y square equals to, just write 4 into 1/2 into x, huh? Just we are forming the equations actually, no? According to the formation, according to the previous concept of the parabola, that y square equals to 4ax formation is there, okay? So y square equals to 4ax, a means this vertex, what, vertex 0, 0, and focus point will be what, symmetrical about positive x-axis, that means a, 0, half, 0. It is your equation number 1, and it is the line 4x minus y equals to 1, that is 4x by 1 plus y by minus 1 equals to 1, x 1/4, y by minus 1 equals to 1. So the points are 1/4, 0, 0, minus 1. It is your equation number 2. Now solving 1 and 2 करके देखते हैं क्या होता है।
यहां पर तो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स, ठीक है। और इधर है वाई इक्वल्स टू 4x माइनस 1, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू 4x मतलब 2 इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 1, वाई इक्वल्स टू 2 इंटू ट्वाइस एक्स के जगह वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना। तो देखते हैं ट्वाइस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म कर सकते हैं क्या, यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस ट्वाइस वाई प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। ट्वाइस वाई वाई माइनस 1 प्लस 1 वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखते हैं ट्वाइस वाई प्लस 1 and y minus 1 equals to 0. That is y equals to minus of y equals to 1. ये दो पार्ट दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या होगा, y का वैल्यू अगर माइनस हाफ है, y का वैल्यू अगर माइनस हाफ है, x का वैल्यू क्या होगा माइनस हाफ, दैट मीन्स 1/4, 1/4 1/8, x इक्वल्स टू 1/8। अगर y का वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू हाफ। तो 2 पॉइंट निकलता है, हाफ कॉमा 1 और दूसरा होता है 1/8 कॉमा माइनस हाफ, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब थोड़ा फिगर में आओ, ये वर्टेक्स तो 0 0 है, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, फोकस पॉइंट हाफ कॉमा 0 है, दैट मीन्स फिगर तो कुछ इस तरह ही होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इस फिगर का नाम क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स लिख रखो। फिर लाइन, यहां पर लाइन ये है, इसका पॉइंट 1/4,0 0, माइनस 1, 1/4,0 तो ये 1/4,0 तो यहाँ पर ही होगा आसपास, है कि नहीं, 1/4,0 और 0, माइनस 1 इधर ही होगा। तो ये होता है लाइन, है कि नहीं। तो ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट निकला है ना, तो ये पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा, दैट मीन्स हाफ कॉमा 1, ये पॉइंट हाफ कॉमा 1, और ये पॉइंट क्या होगा 1/8 कॉमा माइनस हाफ। तो शेडेड पोर्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये है आपका बाउंडेड पार्ट, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस ही तो मुझे एरिया निकालना है, देख के तो लग रहा है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, निगेटिव में आ गया, नीचे आ गया। तो नीचे आने से हम लोग क्या करते हैं पता है ना, एक पैरेलल करके एक्सिस के साथ पैरेलल करके एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन एकदम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1/4,0, है कि नहीं। और ये पॉइंट तो है, तो लिखा ही है 1/8 माइनस हाफ, है कि नहीं। तो यहाँ पर शेडेड पोर्शन का एरिया दिखाई दे रहा है, देखो ओ, ये ए दे दो, ये बी दे दो। सो एरिया ऑफ ओ ए बी, अच्छा यहाँ पर देखो लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू, ये साइन, लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर इस कार्व में एक्स का वैल्यू अगर मैं वाई जब लेस इक्वल्स टू हो ना, लेस इक्वल्स टू, तब देखो यहां पर कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, सपोज 1,0 लेते हैं, 1,0 देखो 1,0 ये y का 1,0 मीन्स ये x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 लेस देन 2 सेटिस्फाई तो हो रहा है कि नहीं। तो जिस साइड में 1,0 पॉइंट रहेगा, जो कार्व ड्रॉ किया ना तुमने, जिस साइड में 1,0 पॉइंट रहेगा उसी साइड में उसका फिजिबल रीजन रहेगा, दैट मीन्स 1,0 तो यहाँ पर होगा आसपास, तो उसका फिजिबल रीजन जो कार्व है इसका फिजिबल रीजन इस तरफ होगा, है कि नहीं, ठीक है। फिर ये जो लाइन है, लाइन में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट करके देखो तो 0 ग्रेटर देन ये 4 0 माइनस 1 सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स जहां पर भी तुमने लाइन ड्रॉ किया है उस लाइन के
जिस साइड में 0,0 पॉइंट रहेगा उसी साइड में उसका फिजिबल रीजन रहेगा, दैट मीन्स ऊपर की तरफ। तो कर्व का है इस तरफ, लाइन का है ऊपर तरफ, दैट मीन्स दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये पार्ट निकल रहा है ना। तो जब ये लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू साइन यूज होता है जब तुम यहां पर एरिया निकालने वाले हो किसी शेडेड रीजन निकालने के लिए, है कि नहीं। सो एरिया ऑफ, नाम दे दो ओ ए बी ओ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, क्या होगा बोलो यहां पर, वन बाई एट टू 1/4, 1/8 टू 1/4, ये इसका पार्ट, इस पार्ट के एरिया निकाल लेते हैं। ये जो है ना, ये जो पूरा पार्ट है इसका निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो इस पार्ट, तो ये तो कार्व से बाउंडेड है, कार्व से बाउंडेड है ना, देखो तो कार्व से बाउंडेड है, दैट मीन्स 1/8 टू 1/4। तो कार्व का इक्वेशन क्या है, ये, दैट मीन्स रूट ट्वाइस एक्स dx। इससे माइनस करना है कौन सा, ये गैप पोर्शन। गैप पोर्शन ट्राइंगल से, दैट मीन्स लाइन से बाउंडेड है, दैट मीन्स 4x - 1 dx। यहां पर भी 1/8 टू 1/4, बस निकाल लो। अभी क्या है, रूट 2 और x टू द पावर 3/2 by 3/2, 1/8 टू 1/4, इधर -4x² 2 माइनस x, यहाँ पर भी 1/8 टू 1/4, बस उसका आंसर निकाल लो, देखो आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं, मिलेगा ना आंसर, क्या बोलते हो, मिलेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, फिर नेक्स्ट में जाओ। द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय द कर्व्स, द एरिया बाउंडेड बाय द एरिया of the bounded region, area of the bounded region by the curves y equals to e to the power x 1, second one is x equals to 0, third one is y equals to e, y equals to e, okay, is option दो, point number 1 e -1, point number 2 1 integration 1 to e plus 1 minus y, e plus 1 minus y dy, then e minus 0 to 1, third point, e minus 0 to 1 e to the power x dx, and fourth part is 1 to e ln y dy, so log y dy, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, है कि नहीं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑप्शन सही हो, ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑप्शन सही हो, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर गिवन कर्व्स y इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो लिख लो x इक्वल्स टू 0, तो मतलब यहाँ पर y एक्सिस है, और y इक्वल्स टू e तो एक लाइन ही है। डायरेक्ट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें तो है ही नहीं कुछ करने का, यहाँ पर जस्ट फिगर में ही सब बात है। y इक्वल्स टू e टू द पावर x, पहले तुम्हें इस टाइप का जो कर्व है, इस टाइप के कर्व में देखना है कि x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू क्या मिलता है। सबसे पहले ये चेक करना है कि इस टाइप का जो कर्व है x एक्सिस या फिर y एक्सिस किसी एक को टच करता है कि नहीं। तो हम लोग चेक कर रहे हैं x का वैल्यू 0 यूज करके y का वैल्यू क्या मिलता है, x का वैल्यू 0 यूज करके y का वैल्यू 1 मिलता है, दैट मींस x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो दैट मींस एक पॉइंट मिल गया 0,1। सिमिलरली y, यहाँ पर y का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, e टू द पावर समथिंग, किसी भी x का जगह यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करो, e टू द पावर समथिंग, 0 तो कभी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये जो कर्व है वो x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, दैट मीन्स x एक्सिस जिस तरफ है इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स ये होगा आपका 0,1 पॉइंट, और यहां से कुछ इस तरफ उसका डायरेक्शन होगा,
है कि नहीं? ठीक है, x इक्वल्स टू 0 तो ये है, ये x इक्वल्स टू 0 है, और y इक्वल्स टू e, दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा, y इक्वल्स टू e, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकल रहा है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। तो दैट मीन्स इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको 2 दो और इसको 3 दो। सॉल्विंग 1 एंड 3 करके देखो क्या आ रहा है। 1 एंड 3 e टू द पावर 1 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 आ रहा है, x इक्वल्स टू 1, दैट मींस ये जो पॉइंट है ये 1, e आ रहा है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर अगर इधर ड्रॉ करें तो ये 1, 0 आएगा। शेडेड पोर्शन कौन सा है? ये है शेडेड पोर्शन आपका। इस पार्ट का एरिया आपको निकालना है कि नहीं? तो एरिया ऑफ, नाम दे दो ए बी सी, सो एरिया ऑफ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, e, है कि नहीं? क्योंकि y इक्वल्स टू ई लाइन है। एरिया ऑफ ए बी सी देखो, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये पूरा ये रेक्टेंगल शेप का, ये किससे बाउंडेड है? e, y इक्वल्स टू ई लाइन से, दैट मींस e dx। माइनस करना है कौन सा? ये गैप पोर्शन, ये जी 0 to 1 किससे बाउंडेड है? कर्व से बाउंडेड है, दैट मींस e टू द पावर x dx। अच्छा, तो यहाँ पर e x 0 to 1 माइनस 0 to 1 e टू द पावर x dx, है कि नहीं? तो बस यहाँ तो e माइनस 0 to 1 e टू द पावर x dx ऐसा तो एक आ रहा है, दैट मींस यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 तो सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 तो सही आ रहा है कि नहीं? अब दूसरा ऑप्शंस भी हम लोग को चेक करना है? दूसरा ऑप्शंस भी हम लोग को चेक करना है कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शंस भी सही हो सकता है कि नहीं। ये थोड़ा मिटा दो, ठीक है? तो ये जो है इसका आंसर क्या आएगा? ये जो है इसका आंसर निकालो तो एरिया क्या आएगा उसका? देखो तो 1 आएगा शायद, है कि नहीं? इसका एरिया देख लो, इसका आंसर निकालो तो देखो e टू द पावर e माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन टू e टू द पावर x ही होता है, दैट मींस e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, है कि नहीं? सो यहाँ पर आएगा e माइनस e प्लस 1, e कैंसिल, दैट मींस 1, यस, स्क्वायर यूनिट 1 ही आ रहा है, स्क्वायर यूनिट इसका आंसर, दैट मींस ये जो है ना ऑप्शन, इसका आंसर 1 आ रहा है। ये तो एरिया निकल रहा है 1 स्क्वायर यूनिट, ये तो श्योर है। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो यहाँ पर डिफरेंट दिया गया ना, ये ऑप्शंस, ये सही है कि नहीं? देखो तो यहाँ पर 1 to e माइनस 1 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया 1 निकल रहा है, ये तो क्रॉस पहले से 1 to e ln log e प्लस 1 माइनस e dy, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, e प्लस 1 माइनस y इक्वल्स टू z ले लेते हैं, दैट मींस माइनस dy इक्वल्स टू dz, दैट मींस dy इक्वल्स टू माइनस dz, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये लिमिट भी थोड़ा चेंज होगा। अगर यहाँ पर 1 हो, अगर x का वैल्यू 1 हो, z का वैल्यू क्या होता है? 1 होने से z का वैल्यू 0। अब x का वैल्यू अगर e होता है, z का वैल्यू क्या होता है? z का वैल्यू यहाँ पर e होता है, ये होता है अगर यहाँ पर e होता है तो 1 होता है कि नहीं? क्या निकलता है? 1 to e, वो e to 1 हो जाएगा, और दिस वन, इसको तो हम लोगों ने z लिया था, और माइनस dz, है कि नहीं? ठीक है, तो माइनस जो है सामने ले लेते हैं, e to 1 z dz, ठीक है? फिर माइनस अगर मैं यहां पर हटाऊं, लिमिट चेंज हो जाएगा ना, देखो तो लिमिट चेंज हो जाएगा ना, लिमिट चेंज होके क्या होगा? 1 to e z
dz है कि नहीं? देखो तो ऐसे लिख सकते कि नहीं 1 to e z की जगह y बिठा देते हैं ना। देखो ये dz हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 to e log e प्लस 1 माइनस y dy जो बात है ये सेम बात ही है कि नहीं? ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दोनों का आंसर देखना है ये 1 के साथ इक्वल जो है वो होता है कि नहीं। अगर 1 के साथ इक्वल है तो सही है भाई। ठीक है, माइनस 1 log 1 माइनस 1 है कि नहीं? तो देखो तो यहाँ पर log e का वैल्यू तो 1 होता है। log e का वैल्यू क्या होता है? 1। दैट मीन्स यहाँ पर माइनस होने से तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो e log e मतलब 1, e माइनस log 1 तो 0 होता है। दैट मीन्स ये पूरा पोर्शन 0, ये 1। देखो आंसर क्या आ रहा है? 1 स्क्वायर। सो दैट मीन्स इसका आंसर भी 1 आया था। ये दिस इक्वल्स टू दिस हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब इसका आंसर 1 आया है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो दैट मीन्स ये तीनों जो है इस कर्व का ही जो बाउंडेड पोर्शन है, बाउंडेड पोर्शन का जो एरिया है ये तीनों से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि देखो 1 आ रहा है आंसर। तो दैट मीन्स इसका आंसर 1 आ रहा है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। इसका आंसर तो 1 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। दैट मीन्स 1 1 1 तीनों एक ही चीज है, तीनों सही होगा यहाँ पर, है कि नहीं? सो देखो ये एक ही यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में से 2-3 ऑप्शन भी सही हो सकता है। ये मल्टीपल ऑप्शंस क्वेश्चंस हैं, ठीक है? हो सकता है सही हो जाए, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे। अब फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, find the area of the region bounded by the curves। लिख लो y minus x whole square, y minus x whole square equals to x cube and x equals to 1, and x equals to 1। ठीक है, इससे बाउंडेड है। तो y minus x whole square और x cube जो है उसको देखो तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने का यहाँ पर कोई रास्ता है कि नहीं आपके पास? देखो तो x रूट x होल स्क्वायर करेंगे, देखो तो x क्यूब आ रहा है कि नहीं? आंसर आ रहा है ना? बोथ साइड स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस x रूट x। इट मीन्स y इक्वल्स टू x प्लस माइनस x रूट x। इट मीन्स 2 केस निकलता है, x प्लस x रूट x, y इक्वल्स टू x माइनस x रूट x। 2 केस निकलता है, 2 कार्व निकलता है यहां से। ठीक है, तो यहां पर ठीक है। अब जो है ये दोनों कार्व x इक्वल्स टू 1 तो नॉर्मल लाइन है, उसका अब क्या ड्रॉ करें? अब y इक्वल्स टू x प्लस x रूट x, इसका क्या करना है? यहां पर देखो इरेगुलर कार्व है, हम लोग को देखना है कि वो ये जो कार्व है वो एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस कुछ भी। तो इसके लिए हम लोग को x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखना है, y इक्वल्स टू 0 पुट करके देखना है। अच्छा, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 अगर मैं पुट करूं, ये 0 0 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 ही निकल रहा है। दैट मीन्स ये 0 0 पॉइंट से तो पास हो रहा है, ये तो कंफर्म है, 0 0 पॉइंट से पास हो रहा है। अब x का वैल्यू 0 है ना, 0 से मैं जितना भी नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ x का, क्योंकि यहाँ पर रूट का टर्म है। यहाँ पर रूट के अंदर अगर मैं x का नेगेटिव वैल्यू पुट कर दूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो दैट मीन्स x का नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हम लोग, है कि नहीं? तो दैट मीन्स यहाँ पर x का पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करते हैं। 0 से शुरू कर रहे हैं। अब 0 1 2 3 4, y का वैल्यू कभी भी कम होगा या x का वैल्यू यहाँ पर बढ़ा रहा हूं, y का वैल्यू क्या कम होगा या फिर ज्यादा होता रहेगा? है ऑब्वियसली ज्यादा होता रहेगा। तो दैट मीन्स जो कार्व है यहाँ पर
जीरो जीरो से तो शुरू हो रहा है, लेकिन x का वैल्यू जितना मैं बढ़ा रहा हूं x y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, ऐसा है कि नहीं? सो दैट मीन्स ये कौन सा कर्व है? y इक्वल्स टू x प्लस x रूट x। ठीक है? अब नेक्स्ट बनाओ x माइनस रूट x। अच्छा यहां पर देखो तो ये x एक्सिस या फिर y एक्सिस किसी एक को टच करता है कि नहीं? अच्छा x का वैल्यू अगर मैं यहां पर 0 पुट करूं, ठीक है? अच्छा यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करने से देखो y का वैल्यू 0 निकल रहा है, दैट मींस 0,0 से तो ये कर्व पास हो रहा है, ये तो कंफर्म है। फिर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, देखो फिर भी y इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दैट मींस यहां पर y का वैल्यू 0 कितना टाइम आ रहा है? एक x इक्वल्स टू 0 के लिए आ रहा है, दूसरा x इक्वल्स टू 1 के लिए आ रहा है। दैट मींस ये जो कर्व है 0 0 से शुरू होगा, फिर आके x एक्सिस को टच करेगा कहां पर? 1,0 पॉइंट में। दैट मींस कर्व जो है कुछ इस तरह होना चाहिए, ऐसा, क्योंकि 1,0 पॉइंट में तो इंटरसेक्ट तो करना है ना उसको, है कि नहीं? ये तो 0 0 पॉइंट है, 0 0 से शुरू होगा, शुरू होते होते फिर आके वो 1,0 में टच करेगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट करने से देखो y का वैल्यू 0 मिल रहा है, और y का वैल्यू 0 मिल रहा है, दैट मींस वो x एक्सिस को टच करेगा। फिर कौन सा है? x इक्वल्स टू 1, दैट मींस x इक्वल्स टू 1 तो यही है। ये कर्व ज्यादा बेंड हो गया है, यहाँ पर थोड़ा ये करो, ठीक है? अच्छा यहाँ पर ये जो है x इक्वल्स टू 1 लाइन है, ये x इक्वल्स टू 1, सो दैट मींस ये देखो ये आपका शेडेड पोर्शन है, तो एरिया ए बी सी वाला होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो बस यहां पर एरिया ऑफ ए बी सी निकालो, 0 to 1 ये पूरा निकालेंगे, ये कौन सा? x प्लस एक्स रूट एक्स से बाउंडेड है, dx माइनस फिर से 0 to 1 गैप पोर्शन माइनस करेंगे, गैप पोर्शन किससे बाउंडेड है? x माइनस एक्स रूट एक्स से बाउंडेड है। बस ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 तो है ही, एक्स टू दी पावर 5/2 बाई 5/2, ये पूरा 0 to 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू दी पावर 5/2 बाई 5/2, होल थिंग 0 to 1। आंसर निकाल लो, मिल जाएगा आंसर आपको, है कि नहीं? ठीक है, आ गया? ठीक है ना? अब जो है नेक्स्ट आ गया, वेरी सिंपल हो गया। ये सब पिछला 10 या फिर 15 इयर्स का जेडब्ल्यू मेन और एडवांस का क्वेश्चंस है। इसमें किसी ईयर जो है वो आया है, ईयर मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर, ठीक है? बट ये समझ लो कि ये 10 से लेके 20 इयर्स तक ये सब क्वेश्चन जो है आया है किसी न किसी ईयर, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, find the area bounded by the curves fx equals to sin x plus cos x, fx equals to sin x plus cos x, fx equals to sin x plus cos x, gx equals to mod cos x minus sin x, है कि नहीं? तो यहां पर देखो ये दोनों कर्व से आपको बाउंडेड पार्ट का एरिया निकालना है कि नहीं? अच्छा एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, ठीक है? अब 1 इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें थोड़ा देखो, मैं यहां पर बोल रहा हूं एक्सिस को टच करता है कि नहीं, देख लेते हैं पहले। ये एक्सिस को टच करता है कि नहीं?
x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, यहां पर x का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो साइन 0 मतलब 0, cos 0 दैट मीन्स 1, तो fx का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करूं, y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पर 0,1 आ रहा है। फ्रॉम 1 इफ x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1, ये बता रहा है। ठीक है, फिर x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं यहां पर x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, अब सपोज y का वैल्यू 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। अच्छा 1 और किसी जगह यहां पर आ सकता है, देखो तो x का वैल्यू और कुछ भी यहां पर पुट करें, y का वैल्यू 1 आ सकता है क्या, देखो तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रिपीट तो होगा किसी न किसी जगह, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, रिपीट तो होगा वैल्यू, क्योंकि फंक्शन होता है ना ये, तो रिपीट तो होगा। तो यहां पर x का वैल्यू अगर कुछ और पुट करने से y का वैल्यू 1 मिलता है क्या, चेक कर लेते हैं। साइन पाई बाई 2, x का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करते हैं, साइन पाई बाई 2 दैट मीन्स 1, कॉस पाई बाई 2 मीन्स 0, दैट मीन्स 1 प्लस 0 1 आ रहा है ना। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 पुट करें, y का वैल्यू तो 1 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो कार्व है, दो पॉइंट के बीच जो है वो लाई कर रहा है। दैट मीन्स देखो 0,1 एक, और दूसरा है पाई बाई 2,1 एक, ये तो 0,1 और ये है पाई बाई 2,1। ठीक है, हो गया। अच्छा अब जो है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है कि नहीं, एक काम करते हैं, √2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स है, तो √2 कॉस एक्स मतलब 1/√2 कॉस पाई बाई 4 लिख सकते हैं उसको, साइन एक्स प्लस 1/√2 उसको साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं कॉस एक्स। देखो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, देखो तो ऐसा आएगा कि नहीं, आएगा। ठीक है, नाउ ये तो गया, अब फ्रॉम 2 आओ, देखते हैं फ्रॉम 2 क्या होता है। ठीक है, अच्छा gx ये दूसरा फंक्शन है, मॉड के अंदर है, प्रॉब्लम ये है मॉड के अंदर है ये, दैट मींस मॉड के अंदर होने से तो भी शेप तो यहां पर तो बनेगा ही, बट वो सीधा नहीं होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ऐसे तो निकलेगा, लाइन तो नहीं है ये, है ट्रिग्नोमेट्रिक कार्व लाइन होता है क्या, नहीं होता है। तो ये शुरू होगा किसी भी जगह से, बट ऐसा थोड़ा कार्व हो जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसी न किसी जगह तो फिर से जाके एक्सिस को जाके कट करेगा ना, तो थोड़ा ऐसे बैंड होके निकलेगा, है कि नहीं। अब ऐसा बैंड तो नहीं होगा, ऐसा बैंड होगा तो वो वाई एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। दैट मींस यहाँ पर ये जो है डोमेन वैल्यूज है ना, डोमेन वैल्यूज किसी न किसी जगह यहाँ पर फिर से इंटरसेक्ट, दैट मींस ये ऐसा कार्व होके निकलेगा, भी नहीं होगा, भी होने से तो सीधा हो जाएगा, तो ये लाइन हो जाएगा, लाइन तो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक कार्व है, थोड़ा बैंड हो जाएगा जिससे वो एक्स एक्सिस को जाके फिर से किसी भी किसी जगह पर यहाँ पर टच करेगा। दैट मींस यहाँ पर देखो, अब जो है जो मैंने ये भी बोला है, भी शुरू तो किसी न किसी जगह से होगा, शुरू कहां से होगा, क्वेश्चन तो ये है शुरू कहां से होगा। देखो यहां पर तो यहां पर gx √2 1/√2 cos x minus 1/√2 sin x mod, so gx equals to क्या आएगा, (1/√2
π/4 माइनस एक्स, है कि नहीं? ठीक है, हो गया, ऐसा कुछ आएगा, है कि नहीं? सो यहां पर x का वैल्यू तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? x का वैल्यू π/4 दिखाई दे रहा है कि नहीं? सो यहां पर x का वैल्यू π/4 जहां पर होगा वहां से ये भी शेप निकलेगा। यही तो है कॉन्सेप्ट, है कि नहीं? सो बस आओ देखते हैं क्या होता है। तो फिगर अगर मैं यहां पर थोड़ा ड्रॉ करूं, है कि नहीं? देखो ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये पहला वाला कार्व क्या होगा? x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, दैट मीन 0,1, यहां पर एक पॉइंट होगा 0,1, और फिर से y का वैल्यू 1 कहां पर रिपीट होगा? जहां पर ये π/2 है, दैट मीन्स यहां पर ले लो π/2 है, ये 0 है, और बीच में π/4 ले लो, है कि नहीं? अच्छा, तो ऐसा फिर से यहां पर ये होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा? π/2, 1, यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखो, ठीक है। फिर दूसरा कार्व क्या है? x इक्वल्स टू π/4 से थोड़ा बैंड होके वो निकलेगा, देखिए कैसे? अब बैंड जो होगा, अब कहां पर x ये यहां पर x एक्सिस को कहां पर टच करेगा और ये कार्व को कहां पर टच करेगा, ये भी तो सोचना है आपको, क्योंकि बैंड टच तो करेगा, इंटरसेक्ट तो करना पड़ेगा, ये तो बाउंडेड पोर्शन तो यहां पर नहीं निकलेगा। अब बाउंडेड पोर्शन निकलने के लिए इंटरसेक्ट तो ये जो कार्व है सेकंड कार्व फर्स्ट कार्व को तो किसी न किसी जगह तो यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। देखते हैं यहां पर, देखो अगर मैं 0,1 है कि नहीं, 0,1 पॉइंट इस कार्व के ऊपर बिठा के देखते हैं तो 0,1 पॉइंट से क्या मिलता है आंसर? दैट मींस x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या आ रहा है? साइन 0 तो ये 0 और 0 1, आंसर क्या आ रहा है? जी x का वैल्यू 1 आ रहा है ना। दैट मींस ये 0,1 जो है ये इस कार्व के ऊपर भी लाई करता है, दैट मींस यहां से एक भी शेप के तरह एक निकलेगा जो इस पॉइंट में टच करेगा फर्स्ट कार्व को, ठीक है। फिर से ये भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। π/2 और 1 देखो, cos π/2 कितना होता है? 0, sin π/2 सॉरी यस sin π/2 1 माइनस 1 मॉड है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस बन रहा है ना, मॉड क्या होगा? तो यहां पर -1 मॉड के अंदर है, वैल्यू क्या निकलेगा? +1 निकलेगा ना। दैट मींस π/2, 1, देखो ये दैट मींस बाउंडेड पोर्शन कौन सा है? थोड़ा बेंड हो गया ना, देखो, क्योंकि ये जाके फिर से किसी न किसी जगह तो x को टच करेगा, ये भी जाके फिर से x को टच करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है ना, ये कुछ देर के बाद रिपीट करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, फिर से इंटरसेक्ट करेगा किसी न किसी पॉइंट में, तो बैंड जो एक्स एक्सिस के तरफ ही होगा, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस जो है, ठीक है। तो ये आपका बाउंडेड, ठीक है। अच्छा, बीच में जो ये पॉइंट है ये π/4 है, दैट मींस यहां पर दो पार्ट निकलेगा, एक 0 से लेकर π/4, π/4 से लेकर π/2, दैट मींस जो रिक्वायर्ड एरिया है ऐसे निकालना है हम लोग को। सो यहां पर देखो, अब आ जाओ, सो द एरिया, हियर 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4, तो ये पोर्शन, ये पार्ट का एरिया निकालना है, दैट मीन्स ऊपर तो ये है sin x प्लस cos x dx, इससे माइनस करना है 0 से लेके π/4, माइनस करना है कौन सा? ये मॉड वाला cos x माइनस sin x dx, फिर प्लस π/4 से लेके π/2 तक जाएंगे, वहां पर भी सेम sin x प्लस cos x, फिर माइनस क्या करेंगे? माइनस π/4 से लेके π/2 cos x मॉड है sin x dx। अब तो यहां पर कंडीशन है,
पाई बाई 4, एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 है ना इसका वैल्यू। अब पाई बाई 4 से मैं छोटा वैल्यू लूंगा, पाई बाई 4 से छोटा, दैट मीन्स यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। पाई बाई 4 से ग्रेटर लूंगा तो यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा, है कि नहीं? है, सही बोल रहा हूं? देखो तो यहां पर दो केस निकलता है ना, एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 है तो यहां पर दो केस निकल जाएगा क्योंकि मोड का फंक्शन है। पाई बाई 4 से छोटा, पाई बाई 4 से बड़ा। अब पाई बाई 4 से तुम चेक कर सकते हो, पाई बाई 4 से छोटा वैल्यू दैट मीन्स 30 डिग्री। पाई बाई 4 से छोटा दैट मीन्स पाई बाई 6, 30 डिग्री। सो दैट मीन्स यहां पर क्या है 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 क्या होता है बोलो तो? ये 45 माइनस 30, यहां पर देखो cos 30 है, x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? पाई बाई 4 से छोटा चूज कर रहे हैं, इसमें नहीं, वहां पर चूज करना इजी होगा। पाई बाई 6 मतलब cos 30, cos 30 मतलब क्या होता है? √3/2 और ये sin 30 मीन्स हाफ। अब √3/2 और हाफ में से कौन सा ग्रेटर होता है? √3/2 ग्रेटर होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। सो दैट मीन्स 0 से लेके पाई बाई, दैट मीन्स पाई बाई 2 से छोटा जब वैल्यू लूंगा तब ये जो मॉड फंक्शन का आंसर है वो पॉजिटिव निकलेगा। दैट मीन्स इस सामने प्लस साइन देना है, मॉड उठा के प्लस साइन दे दो। अब पाई बाई 4 से ग्रेटर दैट मीन्स 60 डिग्री चूज कर रहे हैं, cos 60 दैट मीन्स हाफ, cos 60 हाफ, sin 60 √3/2। अब देखो यहाँ पर √3/2 तो ग्रेटर आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है सामने, हाफ माइनस √3/2 माइनस आएगा ना आंसर। दैट मीन्स यहां पर ये जो है वो मॉड हटा के एक काम करो, सामने माइनस साइन दे दो, हो गया बस। अब कंटिन्यू कर लो, तो यहां पर माइनस cos x प्लस sin x 0 से लेके पाई बाई, माइनस sin x प्लस cos x 0 से लेके पाई बाई 4। यहां पर इसमें माइनस cos x प्लस sin x पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। फिर लास्ट वाला जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये sin x प्लस cos x प्लस cos x पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2। बस हर एक का वैल्यू बिठा दो, आंसर यहां पर मिल जाएगा। यहां पर ये बात समझ में आया ना कि मॉड को हटा के हम लोगों ने क्यों ऐसे लिख लिया, ठीक है? मॉड को हटा के हम लोगों ने 0 से पाई बाई 4 में देखा कि ये मॉड फंक्शन जो है ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मींस प्लस साइन दे दिया, मॉड को हटा दिया। सेकेंड पार्ट में देखो, इस पार्ट में जो मॉड फंक्शन है वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए सामने निगेटिव साइन दे दिया और मॉड को हटा दिया, है कि नहीं? तो बस अभी इसका पूरा ये निकाल लो, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस आज जो है कवर किया है? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर में देखना, ये सब क्वेश्चंस आया है, किसी न किसी ईयर में तो आया है कि नहीं? तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जिससे आप लोगों को फायदा मिले और कॉमन भी मिल जाए, है कि नहीं? और कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, एनी थ्योरी, एनी टॉपिक, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और पर्सनली भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मेरा फोन नंबर जो है मैं देके रखूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो ईमेल आईडी भी देके रहूंगा, आप लोग ईमेल भी भेज सकते हैं और फोन करके क्वेश्चन डाउट जो है पूछ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं फोन नंबर दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को अगर लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय, जय हिंद।